Illustration 1. There is a cash balance of cash. Cash account has a balance, has to be debit balance. On 1st January 2018, 15,000. So cash account has an opening balance on 1st January 18. To balance brought down. How much? 15,000. Cash account has a balance of 15,000. Okay? Then on 5th January, Raj invested rupees 10,000 into business. So this is capital. Increase cash account debit to capital. कैश के डेबिट पाएगा 5th जनवरी को टू कैपिटल. हाउ मच? 10,000. एंड कैपिटल के क्रेडिट पे आएगा ऑन 5th जनवरी बाय कैश. हाउ मच? 10,000. Cash account has an opening balance of 15,000. To balance brought down. Then he invested 10,000 into business. It is a capital and capital credit 10,000. Okay? Now how to post the combined entries? On 18th January 2018, illustration 2. Rent paid 3,000 as rent, 5,000 as salary. Rent account debit 3,000, salary account debit 5,000, to cash account credit 8,000. Okay? Now on a debit of rent, try to understand. On a debit of rent, on debit of that, you will post 8,000. 3,000. On a debit of rent, you will post 3,000. On debit of salary, you will post 5,000. And on a credit of cash, you will post 3,000 for the rent, 5,000 for salary. रेंट में आएगा टू कैश 3,000, कैश में आएगा बाय रेंट 3,000, सैलरी में आएगा टू कैश 5,000, सैलरी में आएगा टू कैश 5,000, इसमें आएगा बाय सैलरी 5,000. ठीक है? दिस इज इलस्ट्रेशन 2. जस्ट सिंपल पोस्टिंग, नथिंग एल्स. रेंट के डेबिट पे टू कैश 3,000, सैलरी के डेबिट पे टू कैश 5,000 एंड कैश के क्रेडिट पे बाय रेंट एंड बाय सैलरी. ठीक है? इलस्ट्रेशन 3. पोस्टिंग ऑफ कंबाइंड एंट्रीज रिलेटेड टू जीएसटी. कुछ भी नहीं है. इंट्रास्टेट परचेस ऑफ गुड्स. इंट्रास्टेट्स मींस विद इन द स्टेट. इंटरस्टेट्स मतलब आईजीएसटी लगता है. इंटरस्टेट में क्या लगता है? आईजीएसटी. उसमें सीजीएसटी एचजीएसटी नहीं होता, एक ही लगता है आईजीएसटी. ठीक है? सो इंट्रास्टेट परचेस ऑफ गुड्स फॉर रुपीज 40,000 एंड जीएसटी एप्लीकेबल अमाउंट पेड बाय चेक. अच्छा, rates of GST 2.5%, 2.5%, right? CGST 2.5%, input HGST 2.5%, IGST. अब इंट्रास्टेट के लिए इसकी जरूरत नहीं, we don't need this. So we purchase goods of 40,000. So 40,000 purchase account debit 40,000, input CGST account debit, input HGST account debit, दोनों 1,000 1,000, to bank 40,000. तो परचेस के डेबिट पे आएगा 40,000. देखो क्या बोल के आएगा? टू बैंक. इनपुट एचजीएसटी के डेबिट पे आएगा 1,000. क्या बोल के आएगा? टू बैंक. इनपुट सीजीएसटी के डेबिट पे आएगा 1,000. क्या बोल के आएगा? टू बैंक. एंड बैंक के क्रेडिट पे तीन चीजें आएगी. बाय परचेस 40,000, बाय इनपुट एचजीएसटी 1,000, बाय इनपुट सीजीएसटी 1,000. तीन चीजें आ गई. ठीक है? सो ऐसे पोस्टिंग ये हमने किया भी है.
देन ये जो सब्सिडरी बुक्स की पोस्टिंग है ये हमने अभी तक की नहीं है, इसके हम अलग चैप्टर है उसमें करने वाले हैं. लाइक पोस्टिंग फ्रॉम कैश बुक ये पेंडिंग है आपका, बिकॉज कैश बुक इज ए सब्सिडरी बुक्स. पोस्टिंग फ्रॉम पेटी कैश बुक सब्सिडरी बुक्स का पार्ट है. देन पोस्टिंग फ्रॉम परचेस बुक इज subsidiary books. Posting from sales book is a subsidiary books. This is purchase return book and sales return book subsidiary books. आगे ये उसी चैप्टर में एक साथ आ जाएगा, डोंट वरी, वही है. All these illustrations related to subsidiary books and from journal proper subsidiary books. ठीक है. So ये सब subsidiary books के क्वेश्चंस हैं. आगे balancing of the ledger. Balancing of the ledger account means totaling the both sides of the ledger accounts, finding the difference between the greater total and the smaller total, and recording the difference on the smaller side. Difference smaller side पे record होगा और next time वो opposite side पे brought down किया जाएगा. Steps for balancing the ledgers. Take the totals of both the sides. Debit side and credit side की total ले लो. Find out the difference between the two sides. दोनों sides में का difference ढूंढो. If the debit side total is more than credit side total, debit is more than credit, the balance is debit balance. Difference will be shown on the credit side as by balance carried down in particulars column, and difference amount is shown in the amount column. Same way, if the credit side total is higher than the debit side total, difference in the amount is shown on the debit side as to balance carried down in the particulars column, and difference amount is shown in the amount column. These closing balances of different ledgers accounts are shown as a opening balances for the next period. हम उनको आगे खींच के लेके आएंगे. Closing balances shown on a debit side. Closing balance shown on a debit side is actually the credit balance, right? Debit side of the ledger account will be shown as an opening balance on the credit side at the beginning of the period as by balance brought down, and similarly opposite of the right उल्टा भी होता है. आगे देखो, if the total of debit side is higher than total of credit side, the account is said to have which balance? Debit balance. If debit is more, ये देखो, if debit is more, debit balance. If credit is more, credit balance. Balancing, okay. चलो हम थोड़ा अब इसमें से क्वेश्चंस करते हैं. ट्रायल बैलेंस, देयर आर टू फॉर्मेट्स, वर्टिकल फॉर्मेट और जर्नल फॉर्मेट. वर्टिकल फॉर्मेट और जर्नल फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस. सीरियल नंबर यहाँ पे अकाउंट नंबर 1, अकाउंट नंबर 2, अकाउंट नंबर 3, अकाउंट नंबर 4, लाइक दैट. हेड ऑफ द अकाउंट्स जो भी रहेगा, राइट. डेबिट, अगर डेबिट क्रेडिट होगा तो क्रेडिट. एंड अनदर इज हॉरिजॉन्टल और लेजर फॉर्म ऑफ द ट्रायल बैलेंस, दोनों साइड पे. सो डेबिट साइड serial number, debit balances LF, right, amount. Serial number, credit balances वाले accounts LF and amount. So एक journal form of trial balance, एक ledger form of trial balance. Generally ये करते जाओ because this takes less space. आगे illustration 13 किया था हमने. I think वहां से तो हमने स्टार्ट किया था illustration 13 से. उसका ट्रायल बैलेंस हमने किया था. इलस्ट्रेशन 14 हमने किया, ओपनिंग बैलेंसेस वाला क्वेश्चन था. आई थिंक ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था, बराबर. नाउ ध्यान देना. गिव द जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग पोस्टिंग्स फ्रॉम द लेजर. लेजर से जर्नल जाना आता है, सॉरी जर्नल से लेजर जाना आता है, उल्टा भी आना चाहिए. ध्यान देना. सो हमें एंट्रीज करनी, एंट्रीज ध्यान देना. एवरीवन प्लीज, दे आर आस्क अस जर्नल एंट्री. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज रियली गुड क्वेश्चन. ध्यान देना. गिव द जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग पोस्टिंग्स फ्रॉम द लेजर अकाउंट. ध्यान देना, जर्नल एंट्रीज देने. ऑलवेज रिमेंबर जो ओपनिंग बैलेंस होता है
ओपनिंग बैलेंस एक्चुअली लास्ट ईयर से आता है या लास्ट पीरियड से आता है, इसकी कोई एंट्री नहीं रहती। ओपनिंग बैलेंस की कोई एंट्री रहेगी क्या? नहीं। इसकी एंट्री रहेगी क्या? नहीं। परचेसेस ये लास्ट पीरियड से आया होगा, इसकी कोई एंट्री नहीं रहेगी। इसकी एंट्री नहीं रहती जनरल एंट्री। बैलेंसेस की कोई भी जर्नल एंट्री नहीं रहती, ट्रांजैक्शंस की एंट्री होती है। when you carry forward balances, when you brought down the balances from one period to another period, उसकी कोई एंट्री नहीं होती, एंट्री ट्रांजैक्शंस की होती है। इवन जो हम क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस, इसकी भी एंट्री नहीं होती। सो ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस हम बैलेंस कर रहे हैं, एंट्री नहीं कर रहे कोई, एंट्री ट्रांजैक्शंस की होती है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं। जब मुझे सपोज इसकी एंट्री करनी है, क्या एंट्री रहेगी ध्यान देना। दे हैव गिवन यू कैश अकाउंट, देयर इज अ परचेस अकाउंट, जयश्री अकाउंट, दे हैव गिवन यू 3 अकाउंट्स। ठीक है, हमें एंट्रीज करनी, ध्यान देना। फर्स्ट कैसे एंट्री देखनी होती है ध्यान देना एवरीवन। डेट वाइज देखेंगे, डेट वाइज। सबसे पहले February 1, वो ओपनिंग बैलेंस, उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। फिर है 3 February एंट्री, फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 700 द फर्स्ट एंट्री 3 February की एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 700। लेजर से जर्नल देख रहा हूं। फिर फिफ्थ की एंट्री आएगी, जिसके सामने बाय लिखा होता है वो डेबिट होता है। बाय टेलीफोन चार्जेस मतलब टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट 750, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट 750 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 750। फिर सिक्स्थ कैश अकाउंट डेबिट 600 टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट 600। क्या एंट्री है? कैश अकाउंट डेबिट 600 टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट 600। सिक्स के बाद एट्थ कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 1500 टू जयश्री अकाउंट क्रेडिट 1500। फिर ये नाइन्थ, जिसके सामने बाय लिखा है वो डेबिट, परचेसेस के सामने बाय लिखा है मतलब परचेस डेबिट होगा एंट्री में, और कैश क्रेडिट होगा, इसलिए कैश के क्रेडिट पे बाय परचेसेस लिखा है। परचेसेस अकाउंट डेबिट 800 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 800। क्लोजिंग बैलेंसेस की कोई एंट्री रहेगी क्या? नहीं। सो यहां से हमें कौन कौन सी एंट्री मिली ध्यान देना। वी गॉट कैश अकाउंट डेबिट, हमें मिला कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 700। फिर कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 600। कैश अकाउंट डेबिट टू जयश्री 1500। टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट 750 टू कैश क्रेडिट 750। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश 800। ठीक है, आगे। और यही तो था ये वाला। कैश में लिखा है बाय परचेसेस, परचेसेस में लिखा है टू कैश, मतलब परचेसेस टू कैश वो वाली एंट्री। कौन सी एंट्री? परचेसेस टू कैश। ये बैलेंसेस की एंट्री नहीं आती। जयश्री को कितना पेड किया था? 1500 ना। यहाँ पे एंट्री है कैश के डेबिट पे टू पर जयश्री, जयश्री के क्रेडिट पे बाय कैश। मतलब एंट्री क्या थी? बाय लिखा है मतलब कैश डेबिट है, कैश के सामने बाय है, मतलब कैश डेबिट ऐसे पढ़ने का। कैश अकाउंट डेबिट 1500, जयश्री अकाउंट क्रेडिट 1500। ठीक है, एक सेकंड।
ध्यान देना, दिस इज अकाउंट, नेम ऑफ द अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, उसकी डेबिट साइड, उसकी क्रेडिट साइड, ठीक है। ध्यान देना, इंटरेस्ट क्या आएगी, फर्स्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट क्रेडिट 3600 3600। फिर दूसरी एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 750 750। फिर एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट क्रेडिट 600 600। और एक एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पद्मा 3600 टू कुमुद 2400। मतलब टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 6000, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 6000 टू पद्मा 3600 टू कुमुद 2400। क्रेडिट के जो पोस्टिंग है उसकी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट 1950 1950। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट 9000 9000। जिसके सामने बाय है मतलब वो एंट्री में रहेगा डेबिट, एंड जिसके सामने टू है वो क्रेडिट रहेगा, एज सिंपल एज दैट। यहां पे एंट्री गुडविल अकाउंट की एंट्री, एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट टू पद्मा कैपिटल 9000 9000, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कुमुद कैपिटल 6000 6000। देयर आर टू पार्टनर्स, इट इज अ पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे दो लोग हैं, ये पार्टनरशिप फर्म है। मैं एंट्री पढ़ना सिखा रहा हूं, लेजर से एंट्री कैसे ढूंढी जाती है। बाय बैंक लिखा है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट 15000 15000, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल 15000 15000। कोई भी अकाउंट ले लो, उसको पढ़ना सीखना है, लाइक दिस। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट to equipment account credit 11250 11250। revaluation account debit to bad debts account credit 1800 1800। स्टॉक बाय लिखा है स्टॉक के सामने, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट 6000 6000। रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट आनंद एंड रोहित, आनंद डेबिट टू रिवैल्यूएशन क्रेडिट 5640 5640, रोहित डेबिट to revaluation credit 1410 1410। आगे एक सेकंड, ओके दिस इज, ध्यान देना, दिस इज अ लेजर एंट्री। एवरीवन विथ मी, ध्यान देना, एवरीवन विथ मी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट 28500 28500। मतलब क्या जाने दो, एंट्री पर एंट्री रीड करनी आनी चाहिए, मतलब अभी भी नहीं समझोगे दिस ऑफ 12th। फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 20500 20500। realization account debit to stock 4500 4500। realization account debit to debtors 30750 30750 या 15000 15000 जो कुछ भी है। realization account debit to bills receivable 9000 9000। क्या एंट्री हुई अभी तक, realization account debit to building 28500, आप कंबाइन एंट्री बोल सकते हो। realization account debit 1,08,000, realization account debit 1,08,000 to building 28,500, to machinery 20,250, to furniture 4,500, to stock 30,750, to debtors 15,000, to bills receivable 9,000। सो रियलाइजेशन के डेबिट पे, मतलब रियलाइजेशन डेबिट है और ये सब अकाउंट्स
building, to machinery, to furniture, to stock, to debtors, to bills receivable, they are the credit. ठीक है, नेक्स्ट, अब ध्यान देना। उसके बाद आगे ये वाली एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कदम्स कैपिटल अकाउंट 18,000 रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कदम्स कैपिटल 18,000 ये रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आपको एंट्रीज भी लिखनी होती है लेजर से। फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शिंदेस कैपिटल 11,250 लास्ट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 2,400 डेबिट की एंट्रीज हो गए, क्रेडिट की बाय creditors, by bills payable, by right. So creditors account debit to realization credit 18,750 bills payable account debit to realization credit 11,250 or you can combine the entry realization account debit, sorry, creditors account debit 18,750, bills payable account debit 11,250 to realization credit 30,000, ऐसे कंबाइन एंट्री डाल सकते हो। अब यहाँ पे देखो, दिस इज बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन क्रेडिट 53,850 यहाँ पे देखो बाय करंस कैपिटल, बाय करंस कैपिटल, सो करंस कैपिटल डेबिट है, रियलाइजेशन क्रेडिट है, एंट्री होगी कदम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन क्रेडिट 30,000 कदम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन क्रेडिट 30,000 फिर बाय शिंदेस कैपिटल बाय लिखा है मतलब डेबिट है, शिंदेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिंदेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन क्रेडिट 7,800 फिर बाय कदम शिंदे चौहान, सो कदम कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000, शिंदे कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000, चौहान कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू रियलाइजेशन क्रेडिट 18,000। धीरे धीरे, मैं नहीं बोल रहा कि एक दिन में आपको आएगा। अब इसकी एंट्रीज देखो, ये ओपनिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस है 4,500, इसकी एंट्री नहीं आएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 53,850 रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 2,400 कदम कैपिटल टू बैंक 12,750 शिंदे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 31,950 कदम्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 11,250 मैं वही समझा रहा हूं, कोई भी अकाउंट होने दो, आप लाइफ लॉन्ग आपको ये लगेगा। यू शुड बी गुड इन रीडिंग द लेजर, you should be good in reading the ledger. Question number two, try to understand is question number 2 is of subsidiary books, तो ये subsidiary books चैप्टर में आ जाएगा, तो अभी मैं नहीं ले रहा हूं, ठीक है। दिस वाज द होमवर्क, आई होप आप लोगों ने किया होगा। यहां पे लिखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर कैश अकाउंट ओनली, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे सुपर नक अकाउंट करना है, ठीक है, नो इश्यूज। क्वेश्चन 6 हमने किया, क्वेश्चन 7 हमने किया, क्वेश्चन 7 क्या था करें, यस ये कल ही किया, ये शायद से कल ही हुआ था हमारा 7th। क्वेश्चन 8 जर्नल हमने किया था क्या, बोलो एक बार कंफर्म करो मुझे खाली, सो दैट आई विल अंडरस्टैंड, बोलो जल्दी।
आई कैनॉट, कोई मुझे बोलेगा आई एम ऑडिबल और नो, पहले ये तो लिखो, यस और नो, एम आई ऑडिबल और नो? ओके ओके, तो मुझे बोलो ना, हमने एक क्वेश्चन किए या नहीं किए? क्वेश्चन नंबर देखो, डिड वी कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 6? 6 किया था क्या हमने? क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक हमने पूरे किए थे, यस। उन्होंने हमें खाली बोला था कैश करो, बैंक करो, परचेसेस करो, सेल्स करो, कैपिटल करो, बराबर ना? हमने पूरे क्वेश्चंस किए थे, यस। तो 6 इज डन। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या स्टेटस है बोलो? क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7, आई थिंक किया है, लोन फ्रॉम केदार वगैरह ये किया था। प्लेस्ड एन ऑर्डर, हाँ ये कल ही हुआ है शायद से। शेखर से कुछ परचेस किए और शेखर को बोलो सागर के गोडाउन में भेज दे, और बाद में सागर को हमने इनवाइस भेज दी। ठीक है, आगे 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑन होल्ड, मतलब इज डन। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या स्टेटस था, आप मुझे बोलो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 प्लीज, 8 8। हाँ ये भी हुआ है, यस। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो डन। क्वेश्चन नंबर 8 नॉट डन, करण कंफर्म करो, क्वेश्चन नंबर 8 डन और नॉट डन? मुझे क्लिक नहीं हो रहा है, बच्चे यस बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। इट्स डन, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 किया हमने। अच्छा, अब हमें कौन से क्वेश्चंस करने हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमें क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 करना है, ठीक है, यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देना प्लीज। नो नो, यू डोंट हैव मैथ्स टुडे, आई हैव इन्फॉर्म मैम, मैंने मैम को बोल दिया है, ठीक है। शायद से मैं कल या परसों पुणे में नहीं हूँ, सो आई एम टेकिंग द लेक्चर टुडे। इट्स नॉट एट फाइनलाइज, मैं कल या परसों पुणे में नहीं हूँ, इसलिए मैं आज लेक्चर ले रहा हूँ। तो मैम विल टेक दैट लेक्चर ऑफ माइंड, ठीक है, मतलब आपका मिस ना हो। द पर्पज इज वेरी क्लियर, लेक्चर्स मिस ना हो, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। आगे हम्म, ध्यान देना एवरीवन, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड द प्रिपेयर कैश अकाउंट ओनली। हमें एक ही अकाउंट करना है, कैश अकाउंट। हमें जर्नल भी करना है और कैश भी करना है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं जर्नल के लिए स्पेस रखता हूँ, एड ए पेज। सो इग्नोर अदर अकाउंट्स, जो अकाउंट्स उन्होंने हमें करने को बोला है हम वही अकाउंट्स करेंगे। उन्होंने हमें कैश अकाउंट करने को बोला है, तो आई विल प्रिपेयर ओनली एंड ओनली कैश अकाउंट। आई विल प्रिपेयर ओनली कैश, बाकी अकाउंट्स आई वोंट प्रिपेयर, बाकी अकाउंट्स मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। आगे, तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर इफ यू डोंट प्रिपेयर ऑल लेजर्स, then you cannot find out the balances of all ledger, and obviously you cannot prepare the even trial balance। ट्रायल बैलेंस के लिए यू मस्ट हैव ऑल द लेजर बैलेंसेस। अब हमें क्वेश्चन ने खाली कैश अकाउंट बोला है, तो हम खाली कैश अकाउंट कर रहे हैं, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग द एंटायर लेजर्स, ठीक है। जब एग्जाम में बोला जाएगा प्रिपेयर ओनली कैश अकाउंट, तो हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। जर्नल का फॉर्मेट, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। हाँ, Hardik started business with cash 15,000 and machinery 20,000, 2019 July 1st। अच्छा, कोई एंट्री बोलेगा क्या? एनी वन ऑफ यू, आई विल अनम्यूट। एनी वन ऑफ यू हु कैन डिक्टेट द एंट्रीज फॉर मी।
हम एंट्री तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ, आप लोगों ने बोलना चाहिए। रिया मैडम बोल सकती हो तू, रिया, सो दैट आई विल अनम्यूट यू। एनीवन रेज द हैंड हु कैन डिक्टेट द एंट्रीज, एंट्रीज बोलेगा मुझे। दिस इज नॉट वन वे कम्युनिकेशन, आप भी बोल सकते हो जल्दी। कोई भी नहीं? सेजल मैडम बोलो, चलो सेजल, यू हैव टू अनम्यूट। हाँ चलो बोलो, फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी? हार्दिक स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 15,000 एंड मशीनरी 20,000, बोलो। हाँ मैडम बोलो जल्दी, एंट्री, जरा एंट्री चाहिए। कैश अकाउंट डेबिट परफेक्ट, गुड। 15,000. कितना? 15,000. हाँ, Machinery account debit 20,000. मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000, गुड। To capital account credit 35,000. परफेक्ट, 35,000, गुड। अच्छा, हमें अब पोस्टिंग करनी है। एक्चुअली हमें पोस्टिंग 3 अकाउंट्स में करनी पड़ेगी, बराबर। कौन कौन से? कैश अकाउंट के डेबिट पे आएगा 15,000, मशीनरी के डेबिट पे आएगा 20,000 एंड कैपिटल के क्रेडिट पे आएगा 35,000 ओवरऑल, बराबर ना? बट हमें उन्होंने कौन सा अकाउंट करने को बोला है? खाली कैश। कैश के डेबिट पे लिखूंगा 2019 जुलाई 1, 2019 2019 जुलाई 1 मैं लिखूंगा 2 कैपिटल 15,000। they have asked me to prepare only and only I won't prepare machinery account and capital account। मशीनरी अकाउंट आपके दिमाग में रखो कि मशीनरी के डेबिट पे टू कैपिटल 20,000 रहेगा एंड कैपिटल के क्रेडिट पे बाय कैश 15,000 एंड बाय मशीनरी 20,000 रहेगा। आपको जस्ट करो, अगर आपको कैश अकाउंट बोला तो जस्ट प्रिपेयर कैश अकाउंट, अदर अकाउंट्स आपके दिमाग में रहेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, हाँ मैडम बोलो। परचेज गुड्स फॉर ₹9,000 लेस 10% CD। Purchases account debit या गुड मैम, परचेसेस अकाउंट डेबिट। यस मैम बोलो। to cash account credit अच्छा, टू कैश अकाउंट क्रेडिट, हाँ। अमाउंट परचेज गुड्स फॉर 9,000 लेस 10% CD, बोलो। 8,000. 8,000 मैडम, 9,000 इज द अमाउंट, 10% मतलब लास्ट डेट हाइड होता है 8,100। दूसरी बात, द ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड 8,100। अगर आप ऐसे रिकॉर्ड कर, रॉन्ग, ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग। रीजन, दिस इज नॉट ट्रेड डिस्काउंट, दिस कैश डिस्काउंट। मतलब हमारे लिए परचेस 8,100 नहीं है, हमारे लिए परचेस 9,000 है। तो एंट्री इज परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट 9,000 टू कैश 800 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 900। मैडम कैश डिस्काउंट कभी भी माइनस होके परचेस या सेल्स रिकॉर्ड नहीं होता। परचेस अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट इज ऑलवेज आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट बट बिफोर कैश डिस्काउंट। लिख लेना कहाँ पे तो।
जब तक तुम लोग सॉल्व नहीं करोगे ना खुद ओके, जब तक ऐसे आंसर नहीं दोगे ना, you will never understand your errors. What is most important in the learning phase? Understanding the errors. आप कितने करेक्ट मैटर नहीं करता, आपके एरर्स आपको समझे वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। गलतियां होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 11th में तो हर कोई गलत होता है, बट अगर आपको आपकी एरर्स ही नहीं पता चलेगी तो आप इंप्रूव कैसे होगे? लिख लेना, राइट? परचेस अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट्स, परचेस और सेल्स अकाउंट्स are always after deducting TD and not CD. परचेस अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट की जब हम वैल्यू ढूंढते हैं, it is always and always after deducting trade discount and not cash discount. And second, cash account or bank account are always after deducting both TD and CD. ठीक है? तो सेजल मैडम, if you take 8,100 यहाँ पे, you are deducting cash discount. मैडम this is cash, ठीक है? ये आपका कैश डिस्काउंट है, तो कैश डिस्काउंट परचेस से माइनस मत करना, ठीक है? अगर ट्रेड डिस्काउंट होता ना वहां पे लिखा तो तेरी एंट्री एकदम परफेक्ट होती कि परचेसेस टू कैश 8,100, बट दैट इज नॉट द ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज कैश डिस्काउंट। आगे मैडम 9th की एंट्री बोलो। अब इसकी पोस्टिंग करते हैं, एक सेकंड, लेट मी पोस्ट। हमें कैश अकाउंट को पोस्ट करना है, तो कैश के क्रेडिट पे पोस्ट होगा, कैश के क्रेडिट पे पोस्ट होगा। कितना पोस्ट होगा? 8,100। तो कैश के क्रेडिट पे 8,100 क्या बोल के? बाय परचेसेस, बाय परचेसेस। डेट क्या है? 4th जुलाई 4th। इग्नोर अदर अकाउंट्स, जस्ट प्रिपेयर कैश अकाउंट। परचेस के डेबिट पे आएगा 9,000, क्या बोल के आएगा? टू कैश 8,100, टू डिस्काउंट रिसीव 900। ऐसे परचेस के डेबिट पे दो चीजें रहेगी, कैश के क्रेडिट पे रहेगा 8,100 बाय परचेस बोल के, डिस्काउंट रिसीव्ड भी अकाउंट रहेगा आपके लेजर में जिसके क्रेडिट पे रहेगा बाय परचेसेस 900, बट हमें खाली कैश अकाउंट करना है, बाकी अकाउंट्स इग्नोर करना है। अच्छा मैडम 9 की एंट्री चाहिए। सोल्ड गुड्स टू अमर 3,000, बोलो। सोल्ड गुड्स टू अमर 3,000, बोलो मैम। Sales account debit to Amar account credit. अच्छा सेल्स डेबिट होगा मैडम। सेल्स कौन सा अकाउंट होता है? इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी। Income इनकम डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? credit. हाँ, तो सेल्स डेबिट कैसे बोल सकते तो? और अमर कौन हो गया तेरा? डेटर, क्रेडिटर? हु इज अमर? डेटर और क्रेडिटर? Debtor. तो डेटर को क्रेडिट कैसे कर सकते तू? इफ ही हैज बिकम योर डेटर तो यू शुड डेबिट हिम ना, बराबर ना? तो Yes. आएगी अमर टू सेल्स, टू सेल्स। कितना है? 3,000 3,000। अच्छा इसमें कैश अकाउंट है क्या? नहीं है। इफ देयर इज नो कैश अकाउंट तो हम इसकी पोस्टिंग, हमें कैश अकाउंट करने को बोला है, तो इसमें इसकी पोस्टिंग आएगी क्या? नहीं आएगी। इसकी पोस्टिंग अमर के अकाउंट में रहेगी और सेल्स के अकाउंट में रहेगी। अमर के अकाउंट में रहेगी टू सेल्स 3,000, सेल्स अकाउंट बाय अमर 3,000, कोई इश्यू नहीं। चलो हाँ मैडम, डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स वर्थ ₹700 एज फ्री सैंपल्स, बोलो 12th की एंट्री। 700 Advertisement account debit हाँ? to cash account credit. देख मैम, पहली तो बात, तूने कैश दी है या गुड्स दी है? Goods. तो कैश अकाउंट आएगा कहां से? तू मुझे बोल। इफ यू गिव द कैश तो तेरी एंट्री बराबर है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड, एडवर्टाइजमेंट टू कैश बराबर है, एक्सपेंसेस डेबिट हो गए, कैश चली गई। बट यहाँ पे कैश गई नहीं मैडम, यहाँ पे गुड्स गए, तो यू कैन नॉट यूज
कैश अकाउंट, इट विल बी रॉन्ग. एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट में रहेगा परचेसेस अकाउंट. क्या रहेगा? परचेसेस. 12. कोई इश्यू नहीं है मैडम. गलत तो गलत, यहाँ पे बैठे के इनको कुछ आता है ऐसे थोड़ी बात है मैडम. एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस. सेवन हंड्रेड being right. Advertisement goods distributed as free sample. मैडम गुड्स गए, गुड्स ड्राइंग्स एग्जांपल, ओनर गुड्स लेके गया पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग्स टू परचेस आता है. गुड्स लॉस बाय फायर हो गए तो लॉस बाय फायर टू परचेसेस आता है. दिस इज गुड्स आर गोइंग आउट, दिस इज नॉट सेल. ये सेल नहीं है. गुड्स बाहर जो हमने परचेस करके रखा है वो बाहर जा रहा है, तो हमने परचेस को कम करेंगे, परचेस को क्रेडिट करेंगे. ठीक है मैडम. अब इसमें कैश अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे पोस्टिंग नहीं आएगी, इसकी पोस्टिंग आएगी एडवर्टाइजमेंट डेबिट में टू परचेस 700 एंड परचेस के क्रेडिट पे बाय एडवर्टाइजमेंट 700. अच्छा मैडम 14 की एंट्री, यू परचेस स्टेशनरी फॉर 550 फॉर ऑफिस यूज. बोलो. Stationery account debit परफेक्ट. 550 to cash account credit 550. परफेक्ट. गुड. सो 14th स्टेशनरी परचेस की तो यूज द अकाउंट स्टेशनरी अकाउंट. परफेक्ट मैडम. स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 550 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 550 बीइंग स्टेशनरी परचेस्ड. अब यहां पे देखो, जब मैंने यहां पे बोला स्टेशनरी परचेस, स्टेशनरी की डेबिट पे आएगा टू कैश और कैश के क्रेडिट पे आएगा 14 को बाय स्टेशनरी. बाय स्टेशनरी 550. कैश के क्रेडिट पे आएगा बाय स्टेशनरी 550. हमें कैश अकाउंट करने को बोला है. नेक्स्ट मैडम बोलो. रिसीव्ड रुपीज 950 फ्रॉम धनश्री, ए कस्टमर whose account was earlier written off as bad debts. वो पहले कभी इंसॉल्वेंट हुई थी धनश्री, तब हमने उसको बैड डेट्स बोला था. आज हमें उससे 950 रुपीज रिकवर हुए 18. तुझे जो आता है वो बोल उसमें से. received rupees 950 from Dhanashri, a customer whose account was earlier written off as bad debts. बोलो मैम. Bad debts account ओके. debit ओके. देखो मैम, योर रिसीव्ड रुपीज क्या लिखा है? रिसीव्ड रुपीज 950 लिखा है. क्या लिखा है मैडम? व्हेन यू रिसीव द कैश, सबसे पहले तो अकाउंट तेरा कैश अकाउंट आना चाहिए. यू रिसीव्ड 950 तो कैश आ गई, कैश कम्स इन, कैश इंक्रीजेस, कैश डेबिट होगा. सो हमें धनश्री से पैसे मिले तो एंट्री आएगी कैश कम्स इन डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 950, कैश अकाउंट डेबिट 950 टू बच्चे धनश्री अकाउंट लिखते हैं, टू धनश्री अकाउंट लिखते हैं, बट एक्चुअली उसका अकाउंट हमने बैड डेट्स बोल के राइट ऑफ किया था. अर्लियर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, मतलब टुडे इट इज ए बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट. सो जो पहले बैड डेट्स हुआ है अगर आज रिकवर होता है, कुछ 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, कुछ 6 मंथ्स पहले अगर कोई बैड डेट्स हुआ है एंड अगर आज वो रिकवर होता है तो इट इज बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट. So entry is cash account debit to bad debts record account credit 950. ठीक है मैडम. कैश आ गई इसलिए तो कैश को डेबिट कर रही है. बैड डेट्स इज ए लॉस, बैड डेट्स रिकवर इज ए इनकम. जब बैड डेट्स होता है वो लॉस होता है, वो डेबिट होगा एंड बाद में जब वो लॉस रिकवर होगा तो हम उसको इनकम बोलेंगे. सो बैड डेट्स रिकवर्ड इज विच काइंड ऑफ अकाउंट? इट इज इनकम अकाउंट, इज ए नॉमिनल अकाउंट. ठीक है. सो कैश के डेबिट पे आएगा कौन से तारीख पे? 18 तारीख पे. टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट. कितना? 950.
नेक्स्ट, हाँ 21st, Abhiram invoiced us goods of 3000. He invoiced goods to us. मतलब है हमने परचेस किया, सेल किया. व्हाट डू यू थिंक? उसने हमें गुड्स इनवाइस किए. Purchase. परफेक्ट, हमने परचेस किए. परफेक्ट, अभिराम से. बोलो एंट्री क्या आएगी मैडम? Purchases account debit. ओके, परचेसेस अकाउंट डेबिट. परफेक्ट मैडम. हाँ, जो भी To 3,000 के थे शायद से, बराबर ना? हाँ, टू cash. मैडम नहीं, कैश नहीं है. किधर लिखा है कि ये कैश पे परचेस किया? ऐसे लिखा है कि गुड्स परचेस फ्रॉम अभिराम ऑन कैश. क्रेडिट भी नहीं लिखा कि अभिराम से हमने क्रेडिट पे परचेस किए. ना ही कैश लिखा है, ना ही क्रेडिट लिखा है. तो तब हम क्या करते हैं, हम उस ट्रांजैक्शन को देखते हैं, और अगर उसमें पार्टी का नाम है, लाइक वी नो द सप्लायर नेम अभिराम, तो हम बोलते हैं क्रेडिट पे परचेस किए. इसको हम क्या बोलेंगे? अगर ऐसे लिखा है अभिराम इनवॉइस गुड्स वर्थ ₹3,000 एंड पेड हिम कैश, तो ये कैश आ गया, तो तेरी एंट्री करेक्ट है, परचेसेस टू कैश. ऐसे लिखा है अभिराम इनवॉइस गुड्स टू अस 3,000 ऑन क्रेडिट, ऐसे लिखा होगा स्पेसिफिकली ऑन क्रेडिट, एंट्री रहेगी परचेसेस टू अभिराम 3,000. बट सर कैश भी नहीं लिखा, ऑन क्रेडिट भी नहीं लिखा, तो क्या करना होता है? तब हमें देखना होता है कि ये जो है इज इट कैश और क्रेडिट. तो हमें एक स्टैंडर्ड एजम्पशन क्या रहता है हमारा? इफ द नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन इन सच ट्रांजैक्शंस जिसमें कैश और क्रेडिट मेंशन नहीं किया जाता, ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें कैश और क्रेडिट मेंशन नहीं किया जाता, उनमें अगर नेम ऑफ द पार्टी है तो हम उनको कौन सा ट्रांजैक्शन बोलते हैं? क्रेडिट. मतलब ये आ गया क्रेडिट परचेसेस. तो तुझे क्रेडिट परचेस की एंट्री डालनी है, तब एंट्री आएगी, राइट? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अभिराम 3,000. ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है कैश अकाउंट, कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. तो हमने नेम ऑफ द पार्टी जैसे हमें मिला, तो हमने बोला कि दिस इज विच ट्रांजैक्शन, दिस इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन. कैश अकाउंट में कोई पोस्टिंग नहीं आएगी, बिकॉज इस एंट्री में कोई कैश अकाउंट नहीं है. इसकी पोस्टिंग परचेस अकाउंट के डेबिट पे आएगी टू अभिराम, और अभिराम के क्रेडिट पे आएगी बाय परचेसेस. कैश अकाउंट ही हमें करने को बोला है, ना कि परचेस एंड अभिराम अकाउंट. तो पोस्टिंग इग्नोर करो. मैडम अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेटल्ड अभिराम अकाउंट. हमने अभिराम का अकाउंट सेटल किया. ही अलाउड 5% सीडी. हमें उसको कितना पे करने थे मैडम? बोलो अभिराम को. 3,000. हाँ, हमने कितने में सेटल किया उसका? 5%. 10% कितना रहेगा 3,000 का? 10% 300. परफेक्ट. मतलब 5% कितना रहेगा उसका? हाफ 300 का 50. 150. परफेक्ट, गुड. सो 3,000 माइनस 150 करके कितना आएगा? 2,850. बराबर ना? Yes. अभिराम को तूने 3,000 के बदले कितने पेड किए? खाली 2,850. बराबर ना? तो यूर अब एंट्री बोल. हाँ, एंट्री बोल सकती तू 24. गलत है तो मैं वो टेंशन मत ले. और यहाँ पे जो भी तुझे सुन रहे ना, इनको घंटा कुछ आता है, सो टेंशन मत ले. कौन क्या बोलता है सेजल, याद रखना फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज यू आर ग्रोइंग. सीखना इंपॉर्टेंट है. जिस दिन तुझे भी आने लगेगा, यू विल बी पार विद अदर्स, कोई इशू नहीं है. हाँ 24th बोलो. Abhiram's account debit. अभिराम्स अकाउंट डेबिट, या परफेक्ट. टोटल कितना? 3,000 ना? Yes. हाँ आगे. To discount allowed. आउट रहेगा, रिसीव्ड रहेगा. यू आर मेकिंग द पेमेंट. जब तू किसी को पेमेंट करेगी तो तुझे मिलेगा या तू देगी उसको? यू आर मेकिंग. हाँ, Received. Discount received account. क्रेडिट कर रही है ना मैडम, तो वो Yes. इनकम होगा, इसलिए वो रिसीव्ड होगा. हाँ, और रिमेनिंग क्या रहेगी तेरी? कैश. 2,850. 2,850. ठीक है. सो अब इसके कैश देखो, अभिराम के डेबिट पे दो पोस्टिंग आएगी. अभिराम अकाउंट के डेबिट पे दो पोस्टिंग आएगी. एक आएगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड 150, टू कैश 2,850. ऐसे दो पोस्टिंग रहेगी. डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट पे पोस्टिंग होगी बाय अभिराम 150. क्या रहेगा? बाय अभिराम 150. एंड कैश के क्रेडिट पे रहेगा बाय अभिराम 2,850. कैश के क्रेडिट पे रहेगा बाय अभिराम 2,850. हमें उन्होंने जितना बोला है हम उतना ही कर रहे हैं लेजर में. हमें सब अकाउंट्स करने को उन्होंने बोला भी नहीं 24 को. परफेक्ट मैम, गुड.
हाँ, एक्सचेंज गुड्स वर्थ ₹2,500 अगेंस्ट फर्नीचर ऑफ द सेम वैल्यू। हमने क्या किया, गुड्स दिए और फर्नीचर ले लिया, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हुआ है मैडम फॉर फर्नीचर। बोल सकती, कैन यू ट्राई? तुझे जितना आता है उतना बोल, बाकी मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। furniture account debit परफेक्ट, गुड। क्यों, फर्नीचर इंक्रीज हो गया ना, फर्नीचर, राइट, परफेक्ट। हाँ, to purchases account अच्छा, credit. क्यों परचेस को क्रेडिट करने का तेरा क्या लॉजिक है, बोल। Sir, because we exchanged goods. ठीक है, गुड। ध्यान देना मैडम, तू मुझे बोल, सपोज हम, मैं एक डीलर हूं, तू एक डीलर है, ठीक है, मैं, तू मेरे से फर्नीचर ले रही है और तू मुझे गुड्स दे रही है। जब मैं तुझे फर्नीचर दूंगा, वो मैं कॉस्ट पे दे रहा हूँ या सेलिंग प्राइस पे दे रहा होगा, व्हाट यू फील? जब मैं सेलिंग प्राइस पे, बराबर ना? अगर मैं तुझे मेरे गुड्स सेलिंग प्राइस पे दे रहा हूं, तो तू तेरे गुड्स मुझे कितने में देगी, कॉस्ट पे देगी या सेलिंग प्राइस पे? तू बिजनेस कर रही है, आई एम ए डीलर इन फर्नीचर, यू आर डीलर इन गुड्स। तुझे फर्नीचर चाहिए तो मैंने तुझे फर्नीचर दे दिया और तूने उसके बदले में मुझे क्या दे दिया, गुड्स। दिस ए बार्टर ट्रांजैक्शन, ठीक है। बट अब मुझे बोल, जो तूने मुझे गुड्स दिए होंगे, will they be at cost price or selling price, what you feel? Selling price. क्या आना चाहिए, सेल्स, टू सेल्स। सो ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू एक्सचेंज द गुड्स, इट इज सेल्स। व्हेन दे से, देखो, गुड्स गिवन एज एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट खुद एक्सपेंस है, इसलिए जब हम गुड्स देंगे तो कॉस्ट प्राइस पे देंगे। गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज, ओनर को हम सेलिंग प्राइस पे क्यों देंगे, ओनर को तो हम कॉस्ट प्राइस पे देंगे, इसलिए वो परचेसेस रहता है। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, राइट, ये सब टू परचेसेस क्रेडिट बराबर है कि गुड्स बाहर जा रहे हैं सर। बट व्हेन यू एक्सचेंज गुड्स फॉर समथिंग एल्स, तो सामने वाले से जो ले रहे हैं वो उसके सेलिंग प्राइस पे ले रहे हैं और हम जो दे हमारे सेलिंग प्राइस पे देते हैं, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज सेल्स। कितने का मैडम, 3000 ना रे, कितना था, 2500, 2500। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना एक और, एक्सचेंज ऑफ गुड्स कहां पे तो लिख लेना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स यहां पे लिख सकते हो, इज सेल ऑफ गुड्स। एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज सेल ऑफ गुड्स। एक मुझे एक अच्छी चीज लगी कि यू अंडरस्टूड कि व्हेन गुड्स गोज आउट, हम परचेस को क्रेडिट करना चाहिए। तूने ये पॉइंट यहां से बराबर उठाया, आई अप्रिशिएट दैट कि हमने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए गुड्स बाहर निकाले थे, तो हमने एक परचेस को क्रेडिट किया। तूने वही लॉजिक यहाँ पे यूज किया, you are using a perfect logic, but the problem is this transaction will be at selling price and this transaction will be at cost price। ये दोनों में डिफरेंस है, ये कॉस्ट प्राइस पे होगा इसलिए यहाँ पे हमने परचेसेस यूज किया, ये ट्रांजैक्शन सेलिंग प्राइस पे है इसलिए हमने सेल्स यूज किया, ठीक है मैडम। आगे, अतः यहाँ पे कुछ कैश अकाउंट में पोस्टिंग आने वाली कि नहीं, फर्नीचर के डेबिट पे आएगा टू सेल्स 2500, सेल्स के क्रेडिट पे आएगा बाय फर्नीचर 2500। यस मैम, गुड। withdrawn cash from ATM rupees 5000 for office use, okay, ऑफिस यूज के लिए 5000 निकाले एंड पर्सनल यूज के लिए 3000 निकाले। मैडम एंट्री बोलो कोई, चलो, यस, कर सकती तुम। Sir, drawings account will come हाँ, बराबर, हाँ, and bank account will come. परफेक्ट। बैंक में कितना अमाउंट रहेगा, बैंक अकाउंट में कितना पैसा? 5000. अच्छा, 5000। अच्छा, तो एंट्री बोल सकती है मुझे? Yes. Bank account debit अच्छा मैडम, तूने बोला है बैंक अकाउंट डेबिट, एक सेकंड ध्यान देना, बैंक अकाउंट डेबिट ना मैडम, बैंक डेबिट कब होता है, बैंक में पैसे आएंगे या पैसे जाएंगे? अगर बैंक में पैसे आते हैं तो बैंक डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, व्हाट यू फील? तेरे अकाउंट में पैसे आ गए, जमा हो गए, डिपॉजिट हो गए, तो तू उसको डेबिट करेगी क्रेडिट करेगी? डेबिट. हाँ, तो यहाँ पे बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक से पैसे जा रहे हैं, वेन्यू जा रहे. हाँ, तो डेबिट नहीं होगा, बराबर ना? तो बैंक को क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो पे देख, तूने बैंक से 8000 रुपए
निकाले, एटीएम से कितने निकाले तूने? 8,000। टोटल कितने निकाले? 8,000। उसमें 5,000 ऑफिस यूज के लिए, मतलब बिजनेस के लिए है, एंड 3,000 पर्सनल यूज के लिए। दिस 3,000 इज ड्रॉइंग्स। ऑफिस यूज के लिए कैश निकाली, दिस इज कैश अकाउंट। So cash increases 5,000, drawings increases 3,000, bank balance decreases 8,000. तो एंट्री रहेगी 29 को। कैश अकाउंट डेबिट 5,000, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 3,000, टू बैंक से पैसे गए, टू बैंक 8,000। ठीक है मैडम। ऑफिस यूज के लिए कैश निकाली, इट इज अ कैश अकाउंट, राइट? लिख लेना। जो चीजें नहीं आपको पता होती है, जो आपको डिफिकल्ट लगती है, उसके पॉइंट्स नोट्स बनाते जाओ ना। कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज, कैश withdrawn for office use is cash account. And not drawings. So 5,000 जो आपने ऑफिस के लिए निकाले कैश रहेगा ड्रॉइंग्स, 3,000 जो के लिए निकाले वो ड्रॉइंग्स होगा, एंड टोटल बैंक से चले गए कितने? बैलेंस डिक्रीज हो गया। कैश के डेबिट का 29 को टू बैंक 5,000। ठीक है, नाउ बैलेंस करना है। मैडम व्हाट यू फील, कैश अकाउंट में कौन सी साइड हेवी रहेगी, डेबिट या क्रेडिट? व्हाट यू फील, कैश अकाउंट में कौन सी साइड हेवी रहेगी? डेबिट। हाँ, क्योंकि असेट अकाउंट है, बराबर ना? सो 950, 20,950, गुड। 100, 150, one carried, 50, 151 carried, 3, सॉरी 1 get 2 हो जाएगा, 7, 7 plus 8, 15, 15 plus 4, 19, 1 carried, 9, 11, 9, 9,450. So at the end of the July, कैश में डेबिट बैलेंस है ऑफ रुपीज 9,450। यहां पे आएगा अगस्त 1। ठीक है मैडम, गुड, गुड एफर्ट्स। प्रॉब्लम देखो, इट्स नॉट कि आप, राइट, आपको क्या आता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। समटाइम्स आई पर्सनली फील कि कभी भी ये नहीं समझना है कि हमें कुछ आता नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू ट्राई। अगर आप करोगे नहीं ना तो आपको कभी कुछ समझेगा नहीं। एक मिनट सेजल, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ठीक है सेजल, सेजल, हाँ, या गुड। देखो, I appreciate her efforts. Maybe she will be wrong in almost 40% of the transactions. No issues at all. Because जब आप error कब कर सकते हो? When you are a student. Once you pass out, you cannot make the errors. ये समझ लेना। And error से अगर जब आपको error कोई दिखाएगा या जब error, try to understand why we appreciate mirror. Try to understand because mirror shows what you are. Try mirror पे हम क्यों देखते हैं? हमें क्या कमी है, हमें क्या बेटर है, वो देखने के लिए। मिरर जो है ना वो दिखाता है, एंड समटाइम्स इट इज बेटर। वो फेक लोगों से तो बेटर है। मिरर जो है वो दिखाएगा, मैनिपुलेट करके नहीं दिखाएगा। देयर विल बी योर फ्रेंड्स, देयर विल बी योर रिलेटिव्स, सम पीपल इन द सराउंडिंग जो आपको हमेशा बोलेंगे यू आर द बेस्ट, यू आर बेस्ट, यू आर बेस्ट, एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट यू विल नॉट गिव दैट मच एफर्ट्स जो एक्चुअली बेस्ट होने के लिए चाहिए। एरर्स आर बाउंड टू हैपन। 11th पे एरर्स आर बाउंड टू हैपन। एंड तक एरर करोगे, मुझे एरर से प्रॉब्लम नहीं है, बट अब यू शुड वर्क ऑन इट एंड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स एज वेल। इट इज नॉट कि हर कुछ खुद के एरर से सीखना है। ऑल्सो लर्न फ्रॉम द एरर्स ऑफ अदर्स। बाकी लोग जो एरर्स कर रहे हैं
वो एरर्स मैं नहीं करूंगा, इससे भी सीखना बोलते हैं। वो आता है विथ एक्सपीरियंस, जो आपको टीचर्स देते हैं, आपके पेरेंट्स देते हैं, बिकॉज उन्होंने उन चीजों से गए होते हैं, तो दे हैव मेड द मिस्टेक्स, एंड वो आपको पहले ही बोल देते, वो पहले आपको अलर्ट करते हैं कि ऐसी गलती होगी। एक खुद के एरर से सीखना, राइट, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। एंड एक होता है दूसरों के एरर से सीखना, दैट इज डन थ्रू द टीचिंग, प्रीच। लोग प्रीच करते हैं, लाइक आपके मम्मी पापा आपको सिखाते हैं उनसे। एंड ऑलवेज रिमेंबर, take it, never take those things, the points or the tips for the granted. So 40% wrong है, I am not worried about that. I am also happy कि उसके 60% transactions are correct. 40% she will eventually learn. उसको थोड़ा उसमें समझा भी होगा, she will think over it and she will make it. Everything same applies to everything, everybody यहाँ पे। एंड अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन नहीं समझ में आता, यू आर ऑलवेज अलाउड टू कॉल मी। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको बोलता हूँ, इवन आई अटेंड द कॉल्स एट मिडनाइट, 12-1 बजे भी मैं कॉल्स बच्चों के अटेंड करता हूँ, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ये समझ लेना, मैं अकेला रहूंगा कि जो कॉल्स अटेंड करेगा, ये फैक्ट है। गो एंड आस्क योर सीनियर्स, अगर आप इनको पूछते हो। रात को 12-1 बजे भी अगर मैं जगा हूं, अगर कोई मुझे मैसेज करता है, सर कैन आई कॉल यू, आई हैव डाउट, आई डू अटेंड द कॉल्स। मैं नहीं नहीं बोलता, बिकॉज आई नो कि 1-2 मिनट्स के डाउट होते हैं, ज्यादा भी नहीं रहते। सो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है लेक्चर में या आफ्टर आप जब पढ़ रहे हो, तो डोंट फील शाई टू आस्क द डाउट्स। दूसरी बात, जब मैं बोलता हूँ कि कोई आंसर देना है तो उसमें शर्माना कुछ नहीं, गलत तो गलत यार, गलत तो गलत ना। गलत किसके सामने, फ्रेंड्स के सामने गलत में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू विल लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस एज में ये रहता है यार, मेरा गलत गया, लोग क्या बोलेंगे, हंसेंगे वगैरह। नेवर फील शाई ऑफ द मिस्टेक्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक, बी क्या बोलते हैं उसको, उतना आप रेसिप्रोकेट करो आपके मिस्टेक्स को, आप सीखो उनसे। एंड देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ लर्निंग। अगर ऐसे होगा तो विराट कोहली वगैरह ये लोग, राइट, उनके कोच की कोई जरूरत नहीं ना, या बैटिंग कोच, स्पेशली बैटिंग कोच वगैरह, दे आल्सो गाइड, बिकॉज एक इवन कोहली जैसे प्लेयर, दे डोंट वांट इवन अ सिंगल मार्जिन ऑफ द एरर, इतने परफेक्ट होना चाहते हैं। डू यू थिंक कि जब सचिन रिटायर हुआ तब उसको बैटिंग कोच की जरूरत होती होगी? नो, बट स्टिल देयर वाज अ कोच एंड ही यूज्ड टू टेक फीडबैक फ्रॉम हिम। मैच के बाद मैं कैसे खेला, क्या गलती रही, क्या रही, लाइक दैट। सो मैं वही बोल रहा हूँ कि राइट, एरर से अगर आपको लगने लगेगा कि मेरी गलतियां हो रही है और मैं डरना है, तो नहीं, हमेशा वो फियर रहेगा आपके मन में, वो निकाल दो। एंड दिस इज द राइट टाइम, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड यू आर विद द राइट पर्सन कि जो आपको बोलेगा आपकी गलतियां क्या है। फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अब, एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 5, एंड जो रेगुलरली अटेंड नहीं करते उनका तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर जो अटेंड ही नहीं करेंगे, अगर जो मिस करेंगे, उनके लिए हम कुछ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता फिर उनके लिए। एक्चुअली मैं उनको देखता भी नहीं बाद में, एक लेवल के बाद मैं उनको देखता भी नहीं, आई कीप ऑन इग्नोरिंग देम। अगर मुझे लगने लगता है ना कि ये बच्चा हमेशा एब्सेंट रहता है, मतलब उसको खुद की नहीं पड़ी, तो मैं क्यों सोचूं। कोई फंडे मेरे बहुत क्लियर है, मैं 2 बार पूछूंगा, 3 बार पूछूंगा, 5 बार पूछूंगा। एक दिन मुझे लगा ना बहुत हो गया, तो उसके बाद मैं उसको देखता भी नहीं, क्योंकि वी आर ऑल्सो ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे। ध्यान देना नाउ, दे हैव आस्क्ड अस टू प्रिपेयर अर्पणा's अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सुपर्णा। हम सुपर्णा के लिए एंट्रीज करनी है, ध्यान देना, इन द बुक्स ऑफ सुपर्णा, इन द बुक्स ऑफ सुपर्णा, इन द बुक्स ऑफ सुपर्णा अपर्णा's अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ सुपर्णा अपर्णा अकाउंट। सो हमें सुपर्णा के लिए एंट्रीज करने हैं और एक ही अकाउंट करना है, अपर्णा। वी हैव टू इग्नोर अदर अकाउंट्स, लाइक कैश अकाउंट हो सकता है, इग्नोर करो, डिस्काउंट अकाउंट हो सकता है, इग्नोर करो, परचेस हो सकता है, इग्नोर करो, सेल हो सकता है, इग्नोर करो। हमें एक ही अकाउंट करना है, ठीक है। अच्छा, लेट मी आस्क समवन, कौन मुझे आंसर देगा, लेट मी चेक।
पुष्कर, ओके गुड। आई एम लैगिंग ए लॉट, ऐसे मुझे नहीं लग रहा है। नेटवर्क तेरे साइड पे प्रॉब्लम है, लैग होता है ना तो मुझे इधर तुरंत दिखता है, इसलिए मैं खुद ओके बोलता हूँ लैग पे चल रहा है, रुको 2 मिनट, लेट मी चेक, कोई तो मुझे देखने दो। अरे अजिंक्य तू बोल सकता है क्या? अजिंक्य साखरे, अजिंक्य, अजिंक्य, आई डोंट नो, आर यू देयर और नहीं है? चैट में तो डाल यस और नो। चलो अच्छा, अच्छा मैं अनम्यूट करता हूँ, चल कर अनम्यूट खुद को, गुड, उधर ऑप्शन रहेगा देख, गुड। चल अब हमें, तुझे मुझे बोलना है हमें किसका अकाउंट करना है, सपर्णा के बुक्स में अपर्णा, सो वी बोथ आर द अकाउंटेंट ऑफ सपर्णा, ठीक है, और हमें अपर्णा का अकाउंट करना है, वी बोथ आर द अकाउंटेंट्स ऑफ एस, हमें ए का अकाउंट करना है। बैलेंस ड्यू फ्रॉम ए इज बैलेंस ड्यू फ्रॉम ए, तो हमारे लिए ए कौन है, डेटर या क्रेडिटर? ड्यू फ्रॉम ए, व्हाट यू फील? डेटर। हाँ परफेक्ट, सो अपर्णा हमारे लिए क्या है, डेटर, तो डेबिट Debtor. स्टार्ट करो या क्रेडिट से स्टार्ट करो? डेबिट बैलेंस, डेबिट। या परफेक्ट, 2019 जनवरी 1, तो हमारे लिए अपर्णा हमारी डेटर है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ड्यू फ्रॉम मतलब डेटर, ड्यू टू मतलब क्रेडिटर, हमें अपर्णा से पैसे आने, अमाउंट 60,000 इज ड्यू फ्रॉम हर, डेटर 60,000 इज ड्यू टू हर, मतलब वो हमारी क्रेडिटर होगी। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, so Aparna is debtor of 60,000, good. फोर्थ को सोल्ड को Aparna 15,000 at 10% TD, अच्छा 15,000 less 10%, 13,500। हाँ क्या एंट्री क्या है, जला एंट्री? आप अपर्णा अकाउंट डेबिट टू, अपर्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना आएगा? 13,500, 13,500 बराबर ना? हाँ। यस, तो अब मैं पोस्टिंग कहाँ पे करूँ, अपर्णा के डेबिट पे करूँ या क्रेडिट पे करूँ? अपर्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स क्रेडिट, टू डेबिट साइड पे टू सेल्स, परफेक्ट गुड। क्रेडिट साइड पे अपर्णा अकाउंट। इधर ही, इधर नहीं 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 नहीं, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट पे बाय अपर्णा, बट हमें सेल्स करना है क्या? नहीं, नहीं। हाँ गुड। गुड्स रिटर्न बाय अपर्णा 1,500, अच्छा कल भी कुछ तो बोला था, ये ग्रॉस है ना, मतलब हमें इसको क्या करना होगा, नेट लेना होगा, तो एक्चुअली ये कौन सा रहेगा, यहाँ पे देख क्या हुआ है, यहाँ पे तेरा ट्रेड डिस्काउंट है 10%, सो जब हमने गुड सेल किए तब हमने ग्रॉस पे रिकॉर्ड नहीं किया, हमने ट्रेड डिस्काउंट करके नेट पे रिकॉर्ड किए, बराबर ना? जो किए 1,500 के वो ग्रॉस के है ना, तो हम उसको से माइनस करेंगे 150, मतलब उसने कितने के गुड्स रिटर्न किए नेट? 1350, तो एंट्री 1350, तो एंट्री क्या आएगी बोलो? अपर्णा अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिटर्न अकाउंट। नहीं नहीं, ये सेल्स रिटर्न है ना, ये कौन सा अकाउंट है, सेल्स रिटर्न है ना, सेल्स रिटर्न। तो मुझे सेल्स रिटर्न की सर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, हाँ परफेक्ट परफेक्ट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अपर्णा अकाउंट, परफेक्ट, टू अपर्णा अकाउंट, टू अपर्णा अकाउंट, कितना 1350 1350, परफेक्ट। सेल्स की एंट्री रिवर्स होगी, सेल्स की एंट्री थी अपर्णा टू सेल्स, अपर्णा डेबिट सेल्स क्रेडिट, उसको रिवर्स करना है, सेल्स को तो डेबिट नहीं करेंगे, सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे टू अपर्णा। तो बोल अब यहाँ पे कहाँ पे पोस्टिंग करूं, अपर्णा के कहाँ पे डेबिट क्रेडिट? डेबिट साइड पे, अपर्णा के डेबिट पे करूं, सेल्स रिटर्न के डेबिट पे आएगा ना,
अपर्णा को तो क्रेडिट हुआ है, हम्म, तो किधर करूं, क्रेडिट पे कितना करूं, बाय सेल्स रिटर्न। सेल्स सेल्स रिटर्न कितना, 7 को 1350, 1350 और सेल्स रिटर्न के डेबिट पे क्या आएगा, टू अपर्णा 150। ठीक है, आगे नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट देखो, हाँ रिसीव्ड क्रॉस चेक, प्लीज जाने दो, रिसीव्ड चेक फ्रॉम अपर्णा, उससे हमें चेक मिला, क्या एंट्री आएगी, वी रिसीव्ड चेक, बैंक अकाउंट डेबिट टू परफेक्ट परफेक्ट गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अपर्णा अकाउंट। तो अब मुझे बोल, मैं अपर्णा के कौन से साइड पे पोस्ट करूं, डेबिट या क्रेडिट पे, डेबिट साइड पे। अपर्णा के डेबिट पे, तूने अपर्णा नहीं क्या एंट्री में, नहीं नहीं नहीं, हाँ अपर्णा के क्रेडिट साइड पे और बैंक के डेबिट साइड पे। अपर्णा के क्रेडिट पे आएगा, क्या बोल के आएगा बोल, मैं तारीख लिखता हूँ तब तक, 11 था, बैंक अकाउंट बाय बैंक परफेक्ट परफेक्ट, बाय बैंक अकाउंट, कितने दिए उसने हमें, 50,000 परफेक्ट परफेक्ट, और बैंक के डेबिट पे क्या आएगा, टू अपर, अप टू अपर्णा। बट हमें वो अकाउंट करने को नहीं बोला, ठीक है, आगे टू इनवाइस टू अपर्णा, मतलब परचेस किया सेल किया, इनवाइस टू, इनवाइस गुड्स टू, उसको हमने गुड्स इनवाइस किए, मतलब हमने उसको सेल किए, हमने उसको इनवाइस किए, मतलब हमने उसको सेल किया, सेल्स की। हाँ तो एंट्री क्या आएगी, अब बोल, अपर्णा अकाउंट डेबिट टू हम्म सेल्स अकाउंट क्रेडिट। यस, तो अब अपर्णा के डेबिट पे आएगा ना पोस्टिंग, 17 पे सेल्स, टू सेल्स अकाउंट, अपर्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हाउ मच, 12,000 सो अपर्णा के डेबिट पे आएगा टू सेल्स, सेल्स के क्रेडिट पे आएगा अपर्णा सोल्ड गुड्स टू अपर्णा इन कैश 6,000, अपर्णा को कैश बेसिस पे गुड सेल किए, क्या एंट्री आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू यस परफेक्ट सेल्स अकाउंट क्रेडिट। परफेक्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 6,000 बराबर ना रे। अब मुझे ये बोल, इसमें अपर्णा को पोस्टिंग आएगी इस एंट्री की, अपर्णा नहीं, नहीं, क्यों, क्योंकि वो सेटलमेंट फुल ही नहीं इसकी कौन कौन से अकाउंट में आएगी इस एंट्री की, इस कौन से दो लेजर अकाउंट्स में इसकी पोस्टिंग आएगी, कैश अकाउंट में टू सेल्स परफेक्ट गुड, हाँ आणि सेल्स अकाउंट में बाय कैश। परफेक्ट, इसमें अपर्णा अकाउंट आया है क्या एंट्री में, नहीं नहीं आएगा क्या लेजर में, परफेक्ट गुड, नेक्स्ट, हाँ रिसीव्ड कैश फ्रॉम अपर्णा 33,000 इन सेटलमेंट ऑफ, एक सेकंड, हम अभी उसका बैलेंस कितने हमें ढूंढना होगा, एक सेकंड, एवरीवन अपर्णा का टोटल डेबिट कितना है, वो हमारी डेटर कितने की हुई है, 500 85,500 डेबिट है, 85,500 मैंने क्रेडिट पे लिख दिया, मैं बैलेंस ढूंढ रहा हूं, इट इज, लेट मी फाइंड 85,500 माइनस 50,000, वो आएगा 35,500, वो आएगा 35,500 माइनस 1350, वो आएगा, ये 150 रहेगा, 34,150, या सो उसका बैलेंस कितना है पता है, 34,150, अपर्णा मेरी डेटर है 34,150, और उसने मुझे पेड किए 33,000 इन फुल सेटलमेंट। ध्यान देना क्या हो रहा है, मैंने अपर्णा को, मैंने पहली, वो मेरी डेटर थी 60,000, एवरीवन वो मेरी डेटर थी 60, मुझे उसकी 60,000 ले लेते हैं, मैंने उसको और 13,500 को गुड्स सेल किए, और 12,000 के गुड्स उसको सेल किए, मुझे टोटल उससे 8,500 लेने हैं, उसमें से उसने 1350 के गुड्स रिटर्न किए, उतना मुझे कम देगी वो, उसने मुझे बीच में 50,000 क्रॉस चेक के थ्रू दिए, तो अभी भी कितना बैलेंस बाकी अपर्णा से आना, 34,150, so I am supposed to receive 35,150 from the Aparna, however she paid me 33,000 in full settlement of 34,150, तो क्या एंट्री आएगी बोलो,
34,150 की जगह 34,150 की जगह उसने हमें 33,000 फुल सेटलमेंट में पेड किया. चल बोल. Cash account debit to परफेक्ट. कैश अकाउंट डेबिट. discount allowed account. डेबिट ही करो ना डिस्काउंट अलाउड को. हाँ debit debit. परफेक्ट. गुड. एक्सपेंस है. हाँ. To Aparna account. कैश में आएगा 33,000. परफेक्ट. हम्म, उसको टोटल कितने थे? 34,150. 34,000. हाँ. तो डिस्काउंट कितना दिया हमने उसको? 1 1150. 1150. सो के डेबिट पे आएगा लास्ट 30th को. टू अपर्णा. सॉरी गलत लिख रहा हूँ. अपर्णा. अपर्णा अकाउंट में आएगा. क्या आएगा रे? to cash account. टू आएगा या क्रेडिट आएगा? अपर्णा एंट्री देखना. कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, अपर्णा क्रेडिट. तो अपर्णा के कहाँ पे आएगा? By हाँ बाय. cash account. हाँ कितना? 33,000. हाँ एंड बाय Discount allowed account. 1150. 50. अपने आप बैलेंस जीरो हो जाएगा. अपने आप बैलेंस जीरो हो जाएगा. उसका Zero. डेबिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. Credit. ठीक है. समझा? गुड. सो यार एक्चुअली मुझे लगता है कि तू तो थोड़ा और बेटर पोजीशन में. कोई अच्छी बात है. सो गुड अजिंक्य. आई थिंक ये फर्स्ट टाइम उसने आंसर दिया होगा बट इट्स गुड. देखो ट्राई करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप ट्राई नहीं करोगे ना देन देयर इज अ प्रॉब्लम. और मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, जिनको अभी भी एंट्रीज में प्रॉब्लम आता है, क्या आता है? यू ऑलरेडी हैव यूट्यूब लिंक. सब लेक्चर्स अपलोड है लास्ट के 1-2 दिन के छोड़ के. बिकॉज आई एम फेसिंग नेटवर्क इशू. मेजर नेटवर्क इशू है. लेक्चर लेने के लिए चलते, अपलोडिंग में ज्यादा लगता है, वो हो ही नहीं रहे अपलोड. बट बाकी सब लेक्चर आपके पास है, जाके देखो ना. और मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब की लिंक है तो आप उसको हायर स्पीड पे भी देख सकते हो ना. 1.5 पे देखो, 0.2 पे देखो, मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 पे देखो. कम टाइम में ज्यादा हो जाएगा आपका. तो अगर आपको जहां पे दिक्कत है ना वो पूछो, वो देखो, वो पढ़ो. देखो मैं बोल रहा हूं आप ऑलमोस्ट 60-70% करेक्ट कर रहे हो, 30% इनकरेक्ट हो रहा है. इवन आई विल ऑल्सो टेक इट. इट्स आई एम नॉट डूइंग दैट मच. मतलब मेरा भी कुछ गलत हो रहा होगा सिखाते टाइम. तो आई विल ऑल्सो फोकस मोर ऑन प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग. मैं प्रैक्टिस पे ज्यादा करता हूँ बिकॉज हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है. ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, करना ही है. एंड सेजल मैम, you are doing good. I am happy with your performance. However, madam, need a lot of improvement at the same time. अगर if you want to do, I am with you. इतना मैं बोलूंगा और मैं सबको बोल रहा हूँ. अगर आप करना चाहते हो तो मैं आपके साथ हूँ. इतना जबरदस्त अकाउंट करूंगा, you won't believe. इतना भारी अकाउंट और समझ के करोगे. रीड करना सीखो. अब इसका मतलब क्या है इस अकाउंट का? अपर्णा हमारी डेटर है और यू नो डेटर इज अ असेट अकाउंट. It is asset account. Asset मतलब this is increase and this is decrease. Debit is increase, credit is decrease. हमें उससे 60 लेने हैं, हमने और सेल किया और 13,500 लेने हैं. हमने उसको और क्रेडिट पे सेल किया 12,000 लेने हैं. हमें उससे टोटल लेने 85,500. हमें उससे लेने हैं 85,500. उसमें से हमें 1350 उसने रिटर्न किए. तो इतना डेटर्स कम हो गए, उतना हमें वो कम पे करेगी. बाद में उसने हमें 50,000 पेड किए, उतना वो हमें कम पे करेगी. फिर उसने हमें 30,000 दे दिए, उतना वो कम हो गया. एंड बाकी तो सब डिस्काउंट है 1150. कोई भी अकाउंट देखो, यू शुड बी इन पोजीशन टू अंडरस्टैंड. लाइक अब कैश अकाउंट देखो. कैश अकाउंट डेबिट इज इंक्रीज इन कैश रिसिट्स एंड क्रेडिट इज डिक्रीज इन कैश पेमेंट. ये रिसिट्स है, यू रिसीव द कैश एंड दीज आर द पेमेंट्स. ये पेमेंट्स है. देखो हमें 15,000 रुपए मिले, फिर हमें 950 मिले, फिर हमें और 5,000 मिले, टोटल हमें 20,950 मिले. उसमें से हमने 8,100 परचेस के लिए दिए, स्टेशनरी के लिए 550 दिए, फिर अब्राहम को हमने या अभिराम को हमने 2850 दिए. ये सब देने के बाद हमारे पास 9450 बाकी है. ऐसे सीखो ना, ऐसे समझो ना. कोई भी अकाउंट ले लो. एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, कैश, यहाँ पे कैश अकाउंट है. डेबिट इज इंक्रीज इन कैश, डिक्रीज क्रेडिट इज डिक्रीज इन कैश.
हमारे पास पहले 1 लाख रुपए थे और हमें 40,000 आए कैपिटल के थ्रू और हमें 8,000 आए कैश के थ्रू, हमारे पास टोटल कैश हो गई 1,48,000। इसमें से 39,200 हमने राकेश को पेड किए, उतने से कैश कम हो गई। 3,000 स्टेशनरी वाले को दिए, 10,000 की सैलरी दी, एंड ये सब पेमेंट करने के बाद, ये तीनों पेमेंट करने के बाद हमारे पास अब 95,800 है। हमारे पास 95,800 है। ऐसे सीखो। देखो आप, परचेस अकाउंट, डेबिट इज इंक्रीज इन परचेस, क्रेडिट इज डिक्रीज इन परचेस, लाइक गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ये चीजें इस साइड पे आएगी। ठीक है, आउटफ्लो। एक्सचेंज यहाँ पे नहीं आता, एक्सचेंज इज सेल। तो हमारे पास हमने पहली 1,30,000 के परचेस किए थे, फिर हमने और 70,000 के राकेश से परचेस किए, हमने और 17,000 के कैश बेसिस पे परचेस किए, हमने और 36,000 के गुड्स कैश बेसिस पे परचेस किए। टोटल अब हमारे परचेस 2,55,000 के। खुद से बात करो ना यार। रश्मि, रश्मि मेरी डेटर है, डेबिट है, मुझे रश्मि से 70,000 लेने हैं और मैंने 30,000 का सेल किया, अब मुझे उससे 1,00,000 लेने और 20,000 का सेल किया, मुझे टोटल उससे 1,20,000 लेने हैं। उसमें से उसने 400 रुपए रिटर्न किए, 400 रुपए के गुड्स रिटर्न किए, 1,20,000 में से 400 कम हो गए। उसने 39,000 का चेक दिया, उतने कम हो गए। 1,000 का हमने उसको डिस्काउंट दिया, राइट, उतने कम हो गए। अभी भी मुझे उससे 79,600 लेने बाकी है। देखो कैसे सीखना होता है यार, तुम लोग कैसे सोचोगे नहीं ना तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे एक राकेश अकाउंट था, देखो, लेट मी शो यू। राकेश, इंटरेस्ट, हाँ देखो, राकेश मेरा क्रेडिटर था, राकेश मेरा क्रेडिटर था, 56 था, मुझे उसको पे करना था। मैंने उससे और परचेस किए 70,000, तो टोटल वो मेरा क्रेडिटर हो गया 1,28,000, मुझे उसको पे करना है 1,28,000। उसमें से 18,000 के गुड्स मैंने रिटर्न कर दिए, 1,28,000 से 18,000 रिटर्न किए, चाहे तो कैलकुलेटर पे ले लो। हमें उसको 1,28,000 देने थे माइनस 18,000, अब मुझे उसको 1,10,000 ही देने। उसमें से मैंने उसको 39,200 कैश दी और 800 रुपए का डिस्काउंट, मतलब ओवरऑल 40,000, ओवरऑल 40,000। सो 1,28,000 में से 18,000 के गुड्स रिटर्न किए, 1,28,000 में से 18 के गुड्स रिटर्न किए, तो उसके लिए तो पेमेंट नहीं करेंगे, पे करने अब 1,10,000, उसमें से 40 सेटल कर दिए, 1,10,000 से 40,000 गए, तो अभी भी कितना बाकी है? 70। मुझे अभी भी राकेश को 70,000 रुपए देने। यूज ब्रेन, यूज अंडरस्टैंड द इंक्रीज एंड डिक्रीज। एंड माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू, ये याद रखना, एज ए स्टूडेंट मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। When I came to Pune and when I took admission in the BMCC, one thing I understood that people will expect a lot of things from me because my surname is Zavre and Zavre is a big brand. The name, surname has got a good name in the CA course or the commerce. पूरे महाराष्ट्र में पता है। तो मुझे वो था कि अगर मुझे अकाउंट्स अच्छे से नहीं आएगा तो people will laugh at me, and this phobia actually made me to learn accounts very conceptually. And then I started working day and night on accounts. मेरा मैथ्स तो पहले से स्ट्रांग था, 10th तक मेरा मैथ्स वाज द बेस्ट। सो मैथ्स में तो ऑब्वियसली 11 12th में मैंने वही मेरा फॉर्म कैरी किया। एंड जो मुझे पूरा एक सब्जेक्ट नया आया था अकाउंट्स, मैं लिटरली मैं बोलता हूँ, मैंने 12th में जितनी पढ़ाई नहीं की ना उतनी मैंने 11th में पढ़ाई की। मैं झूठ नहीं बोलता आप लोगों को। 11th में मुझे पता था कि अगर मुझे बाकी लोगों से कुछ हटके करना है या मुझे एक्चुअल में कुछ चीजें करनी है तो मुझे आज एफर्ट देने, जब बाकी लोग टाइम पास करेंगे तब हमें करना है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज रेफरिंग टू सीए बुक्स वगैरह। मैं हॉस्टल में रहता था तो सीनियर्स के पास बुक्स होते थे, आई यूज्ड टू बोरो बुक्स फ्रॉम देम। मैं पढ़ता था, उसके जर्नल एंट्रीज क्या किए, क्या जितना मेरे लिए रिलेवेंट है। अगर नहीं आते तो आई यूज्ड टू आस्क टू माय सीनियर्स। आई वाज फॉर्चुनेट टू राइट आई वाज फॉर्चुनेट कि मैं मेरे सीनियर्स के साथ रहता था। दोज हु वर डूइंग, सब उनमें से कोई से फाइनल कर रहे, कोई से इंटर कर रहे, कोई से फाउंडेशन कर रहे थे, एंड आई वाज इन 11th। तो आई वाज ऑलवेज इन टच। अगर मुझे कुछ नहीं समझ में आता तो मैं उनको पूछता था इसका मतलब क्या होता है रे। एंड यू कैन आस्क टू योर फ्रेंड्स यार, ऑलवेज। अभी आपका प्रॉब्लम है, यू डोंट नो योर सीनियर्स, बट यू कैन आस्क मी, आई कैन हेल्प यू आउट।
बिकॉज मैंने वो किया था जब मैं 11th 12th में था. मैं पूछता था यार उनको इसका मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय आई ओ यू. यहाँ पे लिखा है राम ओ श्याम, इसका मतलब क्या. मतलब वो बोलते थे राम इज सपोज टू पे टू श्याम, तो राम बन गया डेटर, श्याम बन गया क्रेडिटर. तो राम के बुक्स में, डेटर के बुक्स में जब श्याम का अकाउंट रहेगा तो क्रेडिट रहेगा, एंड श्याम के बुक्स में डेटर राम का अकाउंट रहेगा तो डेबिट रहेगा. दे यूज्ड टू एक्सप्लेन मी दिस थिंग्स, एंड आई वाज फ्रॉम सेमी इंग्लिश बैकग्राउंड. यार मैं क्या बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड वगैरह ऐसे कुछ नहीं है. मुझे अजिंक्य का अच्छा लगा, मुझे लगता है वो मराठी बैकग्राउंड का रहेगा उसके बोलने से, बट समझ रहा है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर, यू विल लर्न इंग्लिश, राइट. और ऐसे थोड़ी कि इंग्लिश आई तो सब कुछ आया, इंग्लिश आनी चाहिए ऑब्वियसली, बट what is more important is the presentation and what you understand. Try to understand. So over a period of time you will also learn that part, कोई problem नहीं. But at first बहुत important है, try to understand. Give at least 2 hours on accounts. Maths तो करो because maths requires a lot of practice. और your time यार, आपको कहाँ पे बाहर जाना नहीं, कॉलेज जाना नहीं, कुछ नहीं. You can find out a time. You can definitely find out a time. अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मैं बहुत अच्छे से टाइम यूज करता. मैं पढ़ाई भी करता, एडिशनल बुक्स भी पढ़ता, रिलेटेड नॉट रिलेटेड टू माय सिलेबस, बट कुछ अच्छी बुक्स जो अच्छे हो सकते हैं, इंस्पायरेशनल हो सकते हैं, जो मुझे नॉलेज दे सकते हैं. गो एंड सर्च ऑन गूगल, कुछ अच्छा पढ़ो, जो आपकी हॉबी उसको कल्टीवेट करो. ट्राई टू अंडरस्टैंड. टाइम मिला है, बाद में ये टाइम नहीं मिलेगा लाइफ में, समझ लेना, ठीक है. सो किसके भी डाउट्स होते हैं, डोंट हेजिटेट टू आस्क टू मी एंड मयूरी मैम, हमारे सब्जेक्ट्स के. वी विल कोऑपरेट यू, वी विल हेल्प यू. इसके लिए तो हम आप लोगों से फीस लेते हैं, सिखाने के लिए और आपको हेल्प करने के लिए. एंड वी आर हियर टू हेल्प यू आउट. यार मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बट आप करोगे नहीं तो प्रॉब्लम है, ठीक है. और जिनको कोई डाउट है, गो एंड चेक द वीडियोस रे, गो एंड चेक द वीडियोस, पहले के वीडियोस देखो. और मैंने बोला कि मल्टीप्लाई बाय 2, मेरे वीडियो मल्टीप्लाई बाय 2 पे देखते चलो, बिकॉज मैं बहुत स्लो सिखाता हूँ. मल्टीप्लाई बाय 2 पे देखो, एकदम इजीली समझेगा आपको. मतलब जो एग्जांपल 60 मिनट्स का वीडियो है आपका 30 मिनट्स में खत्म हो जाएगा, और एकदम परफेक्टली भी समझेगा, बिकॉज मैं वैसे भी स्लो बोलता हूँ. अगर मल्टीप्लाई बाय 2 पे ज्यादा होता है तो 1.5 पे तो डेफिनेटली शूट हो जाऊंगा मेरा स्पीड. और यूट्यूब के लिंक्स है ना आपके पास, ठीक है. चलो कल आपका आई विल अनाउंस, अकाउंट्स रहेगा, मैथ्स रहेगा, शायद से कल मैथ्स रहेगा, ठीक है. थैंक यू.